11th Snapshots Chapter 2 The Address by Marga Minko. This video is the last part 3 of this chapter. This is the concluding part of the story, The Address. So students, watch this video carefully to answer the questions given at the end of this video. Students, the narrator reached Mrs. Dorling's house second time. She sat on a chair beside the table and looked at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. So she is identifying the woolen tablecloth also, and she searched for the burn mark that had never been repaired. Her fingers grew warm from rubbing because it was her. My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. So Mrs. Dorling's daughter said that her mother will be back soon and he had already made tea for her mother. Will you have a cup? आप चाय लेंगी? Thank you. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. So the girl took out the cups on the tea table. She had a broad back. This girl also had a broad back. बहुत भारी भरकम थी ये भी. Just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. So on the lid of the white pot there was gold border, and the narrator knew that it was also hers. I remembered. She opened a box and took some spoons out. The spoons also were hers. That's a nice box. I heard my own voice. मैंने खुद की आवाज सुनी. अरे कितना अच्छा बॉक्स है. क्योंकि खुद की चीजें थी और वो भूल गई थी कि मैं किसी दूसरे घर में बैठी हूँ. उसके अंदर ही अंदर आवाज आ रही थी. बड़ा अच्छा बॉक्स है. It was a strange voice. अजीब सी आवाज थी. As though each sound was different in this room. Oh, you know about them? अरे आपको पता है इनके बारे में? उस लड़की ने पूछा. मिसेस डॉर्लिंग की बेटी पूछती, आप जानती हैं इनके बारे में? She had turned round and brought me my tea. So the girl offered the tea to the narrator. She laughed. My mother says it is antique. You know what my mother says? It is antique piece. We have got lots more. हमारे पास और बहुत सारी हैं. She pointed round the room. रूम के चारों तरफ उसने इशारा किया. देखो. See for yourself. खुद देख लो. I had no need to follow her hand. अब मुझे उसके इशारे की जरूरत थोड़ी थी उनको देखने के लिए. I was already watching everything. I knew which thing she meant. मुझे पता था किसके बारे में बात कर रही है. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. बहुत बार एक बच्चे के रूप में भी हमने ये pewter plate वगैरह के बारे में कल्पना की थी कि हम इनमें खाएंगे, बट कभी मौका नहीं मिला था. We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. The girl is telling everything that we use these all things for everything, and once we also ate food in the plates that are hanging, those are hanging on the wall. I wanted to so much, but
It was not anything special. I had found the burn mark on the tablecloth. खैर उसको टेबल क्लॉथ में जो जले का निशान है वो मिल गया था. The girl looked questioningly at me. वो लड़की देख रही है मुझे जैसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हो. मुझे ध्यान से देख रही है कि ये इतने गौर से सब चीजों को और इस कपड़े को क्यों देख रही है. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired. हाँ, मैंने खुद कहा कि you get so used of touching all these lovely things. आप अपनी खुद की चीजों को छूने के इतने आदी हो जाते हैं और फिर कभी अगर आप इनको ना देखें, आपको ना मिले, आपको कुछ लगता ही है कि यू ओनली नोटिस कि कुछ मिसिंग है, आपको महसूस हो जाता है. बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट. आपने इसको दे दिया किसी को और ये रिपेयर भी होना था. फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. फिर से मैंने अजीब सी आवाज सुनी खुद की अंदर से और मैं चली गई. I remember my mother once asked me. एक बार मेरी मम्मी ने मुझे बोला था if I would help her polish the silver. बेटा क्या तुम मेरी सिल्वर्स जितने भी कटलरी वगैरह हैं उनको पॉलिश करने में, उनको साफ करने में हेल्प करोगी. It was a very long time ago and I was probably bored. बहुत टाइम पहले की बात है, मैं छोटी थी. इन सब काम से मैं बोर हुआ करती थी उस समय. याद आ रहा है नरेटर को अब सब चीजें. That day or perhaps I had to stay at home. मुझे शायद उस दिन घर पे ही रहना था बिकॉज आई वॉज इल. मैं बीमार थी. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. और क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे पहले तो कभी नहीं पूछा था ऐसा कुछ काम करने के लिए. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स, फोर्क्स एंड नाइव्स ऑफ कोर्स. मैंने पूछा कौन से सिल्वर मम्मी? तो उसने कहा बेटा ये ही जितने स्पून, फोर्क्स और नाइव्स रखे हैं और क्या. And that was the strange thing. और यही अजीब बात थी. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. तो जिस कटलरी से हम खाया करते थे रोजाना, मुझे ये भी नहीं पता था उस समय छोटी थी कि वो सब सिल्वर के थे. The girl laughed again. फिर से हंसती है वो. I bet you don't know it is either. मैं शर्त लगा सकती हूँ आप इसको तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे. I looked intently at her. मैंने उसको देखा गौर से. What we eat with, she asked. हम किससे खाते हैं? उसने पूछा. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open the drawer. I look, it's in here. तो वो लड़की थोड़ा सा हेजिटेट हो जाती है जब वो पूछती है नरेटर की हाँ क्या तुम इनको जानती हो. हेजिटेट हो जाती है और फिर से जाके ड्रॉर में देखती है कि अभी भी ये सब चीजें अंदर ही रखी हैं, इधर उधर तो नहीं होगी, कभी मम्मी डांटे आगे. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. सो नरेटर फॉरगॉट अबाउट हर टाइमिंग ऑफ द ट्रेन. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर. उसने ड्रॉर पे हाथ रखा हुआ था. उस लड़की ने. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? मेरी मदर का वेट नहीं करोगे? नो आई मस्ट गो. नहीं जाना है मुझे. आई वॉक टू द डोर. द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन. लड़की ने वो ड्रॉर खोली. आई कैन फाइंड माई ओन वे. चलो मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ, उस लड़की ने बोला. एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स. जाते हुए भी उसने उस ड्रॉर में आवाज सुन ली थी, स्पून्स और फोक्स के खनकने की आवाज सुन ली थी. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट. इट सेड. फिर से नेम प्लेट पे देखा. मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. पता तो सही है. द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेम्बर इट एनी मोर. मैं अब इसको याद रख के भी क्या करूंगी. आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former times instantly lost their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. Means to say कि everything that is very close to you
spoons, forks, tablecloths, everything lost the value when you see those old things in a new surroundings. Now there is no value for all the things for the narrator. And what should I have done with them in a small rented room? और अभी वो छोटे से तो किराए के कमरे में रहते हैं, वहां इनका क्या काम? Where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. छोटी सी टेबल है, उसमें छोटी मोटी एक दो कटलरी आ सकती है, एक दो फोक्स स्पून्स आ सकते हैं, इतने ज्यादा का वहां कोई काम भी नहीं है. और दूसरी बात, अब मैं इससे लड़ झगड़ के सब चीजें ले भी नहीं सकती और लेना चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि इन सब चीजों का मेरे लिए काम भी कुछ नहीं है. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. बस उसने सोच लिया, निश्चय कर लिया कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द इजीएस्ट. एंड she decided to forget everything and all the things, and she thought that it would be the easiest way now, because she had seen everything in the strange surroundings and everything lost charm for the narrator. सब चीजों ने उसके लिए चार्म खो दिया था. तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है कि जब वॉर होता है, युद्ध होता है, तो बहुत सी चीजें को उलट पलट कर देता है. युद्ध हुआ, युद्ध में नरेटर शामिल हुई और फिर बाद में वो आती है अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को, चीजों को ढूंढने के लिए. तो उसकी माँ ने एक पता दिया था कि नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे जाना, वहां मिलेंगी. तो वहां जाती जरूर है, लेकिन उस लेडी ने उसको पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि वो पहली बात तो उन चीजों को नहीं देना चाहती थी. अब बीच में नरेटर अपने स्टेशन चली जाती है. स्टेशन जाते जाते सब बातों को याद करती है, कैसे मेरी माँ उसको सारी चीजें दे दिया करती थी संभाल कर रखने के लिए. लेकिन फिर से आती है वो वापस, एक बार सेकेंड टाइम फिर से आती है, फिर से सब चीजों को देखती है. इस बार मिसेस डार्लिंग वहां पर नहीं थी, उसकी लड़की उनको मिलती है और वो सब चीजों को देखती है बड़े ध्यान से. लेकिन फिर से उनको एक अजीब सी सराउंडिंग में सारी चीजों को देख के, कैसे रखी हुई है, बेढंगे तरीके से रखी हुई है, इनको भूल जाना ही बेहतर है. और दूसरी बात है, मेरे छोटे से रूम में इन सब चीजों का काम भी कुछ नहीं है. तब सेटिस्फेक्शन हुआ और उसको लगा कि हाँ, बस यही सबसे अच्छा तरीका है इन चीजों को भूलना, क्योंकि इन चीजों को याद करके भी और इस एड्रेस को भी याद करके जो लेडी सामान देना नहीं चाहती, और दूसरी बात मेरे काम की भी नहीं है, मुझे दुख ही होगा और मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आया करेगी जो मुझे दुखी करेगी. इसलिए वो उस एड्रेस को भूल ही जाना चाहती थी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Question number 1. Why had the narrator remembered Mrs. Darling's address? Question number 2. Why did the narrator wanted to forget the address? These are very important questions for your exams also. So students, be careful while answering these questions. Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.